Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, so far we have discussed till question number 140 and now we will discuss question number 141 to 160. तो अभी तक जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो यहाँ ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर चैनल पे विजिट करके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है सीपीओ 2018 टीयर 2 करके एक प्लेलिस्ट है, आप वहां पे जाके भी देख सकते हैं, सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 141 स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको एरर स्पॉट करना है। सो द फाइल्स यू वर लुक फॉर आर प्लेस्ड ऑन द टेबल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका, सीधा टेंस का अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो भी आप कर लेंगे। सो द फाइल्स यू वर यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस का है टेंस, तो यहाँ पे वर्ब के साथ क्या आएगा, आईएनजी जरूर आएगा। तो यू वर लुकिंग होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपकी मिस्टेक है। अब नेक्स्ट आपका कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है। तो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन कैसे सोल्व करने वो मैं आपको कई वीडियो जो इससे पहले के वीडियोज हैं उनमें जो क्वेश्चन आए थे उसमें बता चुका हूं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी इनके आंसर्स करेंगे। तो एक बार ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं हम जल्दी से। द चिल्ड्रन वर टू बी ड्रिवन एज ए स्पेशल ट्रीट टू द सैंड जबोर्ग. Nicholas was not to be of the party. He was in disgrace. Only that morning he had refused to eat his wholesome bread and milk on the seemingly frivolous ground that there was a frog in it. Older and wiser and better people, yani his aunt, had told him that there could not possibly a frog in his bread and milk and that he was not to talk nonsense. He continued nevertheless to talk what seemed complete nonsense and described with much detail the coloration and markings of the alleged frog. The dramatic part of the incident was that there really was a frog in Nicholas' basin of bread and milk. He had put in there himself, so he felt entitled to know something about it. The sin of taking a frog from the garden and putting it into a bowl of wholesome bread and milk was enlarged on at great length, but the fact that stood out clearest in the whole affair as it presented itself to the mind of Nicholas was that the older, wiser, and better people had been proved to be profoundly in error in matters about which they had expressed the utmost assurance. You said there couldn't possibly a frog in my bread and milk. There was a frog in my bread and milk, he repeated with the insistence of a skilled tactician who does not intend to shift from favorable ground. तो ये आपका पैराग्राफ था। अब इसमें आपके क्वेश्चंस कर लेते हैं। So what made Nicholas so sure about what he said? तो he noticed it jumping in, he saw someone putting it in, he himself had put it in, his cousins had told him about it. तो पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको पता लगा कि उसमें लिखा हुआ था कि निकोलस ने खुद ही वो फ्रॉग गार्डन से उठा के अपने ब्रेड एंड मिल्क में डाला था। तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर कि उसने खुद ही वो फ्रॉग उसमें डाला था। Why did Nicholas consider his aunt had been proved to be wrong? निकोलस को ये क्यों लगा कि उसके जो आंट है वो गलत साबित हुई? तो ऑप्शन आपके she said there was no frog in the bowl, she always scolded him, she was forcing him to eat the bread and milk, she never listened to him. तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर कि वो कह रही थी कि फ्रॉग जो बाउल में फ्रॉग नहीं हो सकता, लेकिन एक्चुअली क्या था, बाउल में फ्रॉग था क्योंकि निकोलस ने खुद ही उसमें वो फ्रॉग गार्डन से लाके डाला था। What excuse did Nicholas give for not eating his bread and milk? तो इसमें कि उसमें फ्रॉग था यही रीजन था। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 is the right answer that there was a frog in it. That's why he denied to eat the bread and milk. What was the aunt trying to tell Nicholas? आंट क्या कहने की कोशिश कर रही थी निकोलस की कि अगर तुम ब्रेड मिल्क नहीं खाओगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। सो इनडायरेक्टली उसका यही मतलब था दैट ही वुड बी पनिश्ड इफ ही मिसबिहेव्ड। द चिल्ड्रन वर बीइंग टेकन ऑन ए स्पेशल ट्रीट टू। तो आपके पहली लाइन में लिखा हुआ है कि इन द सैंड्स ऑफ, ये आप जब ऊपर पढ़ेंगे तो आपको पहली लाइन में पैराग्राफ की लिखा हुआ है कि टू द सैंड्स ऑफ जबोर्ग। तो सैंड्स एट जबोर्ग में मीन्स कि बीच पे लेके जा रहे थे। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। सो आई टोल्ड देम टू बी क्वाइट। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, आई टोल्ड देम बी क्वाइट, क्योंकि ऑर्डर दे रहा है तो इसमें ऑर्डर देने वाले में क्या आता है, बी का यूज करते हैं, बी क्वाइट
लाइक दिस। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, क्योंकि वैसे टोल्ड का इनडायरेक्ट में यूज करते हैं तब जब डायरेक्ट में सेड टू गिवन हो। तो यहाँ पे सेड टू तो गिवन है, बट यहाँ पे बी के बाद यू का ऑप्शन, ये जो यूज है ये नहीं होगा। यहाँ पे बी क्वाइट होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, ये मोर प्रिसाइज होता इससे ऑप्शन नंबर 2 से, बट नहीं है ऐसा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आई टोल्ड देम बी क्वाइट। इसमें आपको एरर स्पॉट करना है क्वेश्चन नंबर 148 में। सो निखिल इज मोर ब्रेवर देन सुशांत हु इज अफ्रेड ऑफ द डार्क। तो इसमें आपका जो मोर का यूज किया है ये सुपरफ्लुअस है, यहाँ पे इसको यूज करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पैराजम्बल्स का है। सो इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं ये पहले। सो आपके ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं सी से, डी से, बी से और डी से, यानी ए से कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं हो रहा। तो एक बार सी से चेक कर लेते हैं। He said he would pay 10 gold coins, but in the statement S1, one night मुल्ला नसरुद्दीन होजा had a dream। अब इसमें किसी थर्ड पर्सन के बारे में मेंशन नहीं है, तो हम डायरेक्टली S1 के बाद में किसी थर्ड पर्सन से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, गलत हो जाएगा। यानी सी से किसी भी स्टेटमेंट की इसमें शुरुआत नहीं होगी। दैट मीन्स आपका ये ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे रॉन्ग हो गया। सो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे गलत हो जाएगा। देन देखते हैं डी से स्टार्ट होगा या नहीं होगा। ये यूजुअली क्या होता है कि जो दो ऑप्शन आपके ऐसे सिमिलर हो ना, यूजुअली उसी से सेंटेंस स्टार्ट होता है। सो ये डी से ही स्टार्ट होगा। ए मैन नॉक्ड एट हिज डोर एंड आस्क्ड इफ ही कुड स्पेंड द नाइट इन हिज हाउस। तो उसको एक सपना आया जिसमें क्या था कि एक आदमी उसके दरवाजे पे आता है और पूछता है कि क्या वो एक रात उसके घर पे रुक सकता है। तो आपका डी से तो स्टार्ट होगा सेंटेंस, बी आपका क्या कैंसिल आउट कर सकते हो। अब आपको फाइंड आउट करना है कि डी के बाद ए आएगा या फिर सी आएगा। तो डी के बाद क्या आना चाहिए, इसी के कंटिन्यूएशन में कुछ आना चाहिए। सो उसने पूछा कि क्या वो एक रात रह सकता है, देन आपका डी के बाद सी। ही सेड ही वुड पे 10 गोल्ड कॉइन्स टू होजा इफ ही वाज अलाउड द प्रिविलेज। तो उसने बोला कि वो 10 गोल्ड कॉइन्स देगा अगर उसने उसको रुकने की इजाजत दे दी। तो डी के बाद आपका आएगा सी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, डी सी ए बी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 150 आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। आई हैड टू गो टू दिल्ली, हाउएवर आई चेंज माई माइंड एंड डिसाइडेड नॉट टू गो। सो ये स्टेटमेंट पूरा करेक्ट है, इसमें किसी भी तरह की कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती। सो आप ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देन आपको क्या करना है, ये क्लोज टेस्ट आ गया। अब क्लोज टेस्ट में सबसे परेशानी आती है लोगों को, क्योंकि इसमें काफी क्लोज ऑप्शंस होते हैं एंड ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं होती। तो इसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, जिसकी वजह से कई क्वेश्चंस इसमें गलत हो जाते हैं कैंडिडेट्स के। तो इसको हम पहले क्या करना होगा, आपको पहले एक पूरा ये एक बार जल्दी से एक उसको रीड कर लेना है और एक स्टोरी क्रिएट करनी है कि पॉसिबल स्टोरी क्या हो सकती है। सो राम सिंह विशल्ड cheerfully as he pushed his bicycle up the hill towards old Mrs. Gupta's house. His work for the dash was almost finished. And dash his bag, which was usually dash when he started from the post office, now become empty for the letter that he had to dash to Mrs. Gupta. She lived a kilometer dash from the village. So when dash had a letter for her, he did not mind that dash Mrs. Gupta always called him in for a cup of tea. So इसमें स्टोरी ये बन रही है कि एक पोस्टमैन के बारे में स्टोरी है। उसको कुछ लेटर्स पोस्ट करने होते थे मिसिस गुप्ता के पास, उसको लेटर पोस्ट करने जाना था, जो माउंटेन्स पे हिल्स पे रहती थी, गांव से दूर थी। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो पहले जो फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, हिज वर्क फॉर द डैश वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। सो पोस्टमैन का जो डेली का वर्क था वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था, ऑप्शन नंबर 2। यानी उसके दिन का जो काम था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था कि उसने सारे लेटर्स पोस्ट कर दिए, डिलीवर कर दिए थे। डैश हिज बैग विच वॉज यूजुअली डैश हिज बैग। तो इसमें क्या आएगा, एंड हिज बैग। अब ऑप्शन नंबर 3 में क्या आएगा आपका, देखते हैं। विच वॉज यूजुअली डैश व्हेन ही स्टार्टेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। जब वो पोस्ट ऑफिस से शुरुआत करता था उसका बैग क्या होता था, उसका बैग होता था टोर्न लार्ज हैवी डर्टी। उसका बैग हैवी होता था, क्यों उसका बैग होता था हैवी, क्योंकि कई सारे उसमें लेटर्स होते थे।
अब ऑप्शन नंबर 4 में देखते हैं क्या आना चाहिए। फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस डैश नाउ बिकम एम्प्टी। अब क्या हो गया, खाली हो गया। तो आपको सही जो वर्ब का यूज करना है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, हैड बिकम एम्प्टी, क्योंकि पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो कोई भी प्रेजेंट का वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज नहीं करेंगे, ओनली पास्ट सेट जो टेंस होगा उसी में इसमें सारे आंसर करने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 150 में, नाउ बिकम एम्प्टी डैश फॉर द लेटर दैट ही हैड टू डैश मिसिस गुप्ता। सिर्फ उसके पास एक लेटर था जो मिसिस गुप्ता को डिलीवर करना था। सो इसमें क्या आएगा, एक्सेप्ट फॉर द लेटर दैट ही हैड टू डिलीवर टू मिसिस गुप्ता। अब क्वेश्चन नंबर 157 में क्या आना चाहिए, 157 में देखते हैं यहाँ पे, शी लिव्ड 1 किलोमीटर डैश फ्रॉम द विलेज। अब ये कहना क्या चाहता है कि विलेज से 1 किलोमीटर दूर रहती थी, तो यहाँ पे स्टारों में से क्या आएगा, शी लिव्ड 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम द विलेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम द विलेज सो व्हेन डैश हैड ए लेटर फॉर हर। अब लेटर किसके पास होता था, पोस्टमैन के पास में। सो 58 में क्या आएगा आपका, व्हेन ही हैड ए लेटर फॉर हर। अब आगे देखते हैं, ही डैश हिज डेज वर्क लेट। जब उसके पास एक लेटर होता था मिसिस गुप्ता के लिए तो वो क्या करता था, अपना दिन का काम लेट खत्म करता था। क्यों करता था, क्योंकि उसको जो माउंटेन 1 किलोमीटर दूर रहती थी वो विलेज से। हाउएवर ही डिड नॉट माइंड दैट बिकॉज मिसिस गुप्ता ऑलवेज कॉल्ड हिम इन फॉर ए कप ऑफ टी। बट उसको ये बुरा नहीं लगता था क्योंकि मिसिस गुप्ता उसको एक जो चाय का कप था उसके लिए इनवाइट करती थी, बिकॉज। तो इसमें आपके 160 तक हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है ये सारा कंटेंट पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।